ایک تو جی 1,82,210 جو ہے وہ ہمارا کوٹا جو ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے جی. اس میں سرکاری اور نجی جو ہیں وہ دونوں 50-50 ہیں. ڈیوائڈ ہم نے کیا ہوا ہے تو یعنی تقریباً 89,605 جو ہیں جی وہ سیٹیں جو ہیں وہ دونوں طرف مختص ہوں گی، پرائیویٹ حجاج کی اور سرکاری حجاج کی بھی. اس میں جو سعودی تعلیمات ہیں، جو ان کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اب کم از کم جو ایک گروپ ہونا چاہیے وہ 2,000 لوگوں کا ہونا چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً ایسے ہوتا تھا کوئی 10 بندے، کوئی 20 بندے، 100 بندوں کو لے کے حج پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جگہ لینے میں بھی دشواری اور مشکلات ہوتی ہے. جب 2,000 بندہ ایک گروپ ہوگا تو وہ وہاں پہ آپ کو جو جگہیں ہیں وہ بھی بہتر ایلوکیشن مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جی ایک جو اچھی ایک اسکیم شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ جب جمع کرائیں گے اپلیکیشن کے ٹائم پہ، اس کے بعد اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے پھر 4 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے اور پھر فروری میں جا کے آپ نے باقی کی اماؤنٹ جمع کرانی ہے، تاکہ ایک جو عام آدمی ہے جو اکٹھے اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا اس کو وقفے کے ساتھ ایک موقع مل جائے گا پیمنٹ کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جی سعودی حکومت کی طرف سے جو ان کی سعودی تعلیمات ہیں اس میں ایک نئی چیز جو اضافی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ نہیں جا سکیں گے حجاج کرام کے ساتھ. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہاں جا کے مشکلات بھی ہوتی ہیں اور یہ ہے بھی پھر دوبارہ سے گرمی میں حج، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک نئی جو ہے ایک ریکوائرمنٹ جو ہے سامنے رکھی ہے. ایک اور جو اچھی بات ہے جی، اچھی سینس میں کہوں گا کہ کمپنسیٹ کیا جائے گا اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی فوت ہوتا ہے. پہلے 10 لاکھ روپیہ تھی، وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے 20 لاکھ روپیہ کر دی، اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ جی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ حج جو ہے یقیناً آسان نہیں ہوتا، اس میں ضرور شکایات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن پچھلے سال کا بھی جو حج تھا وہ ماضی کے جو حج تھے ان سے کافی بہتر تھا. اور اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور کم سے کم شکایات جو ہیں وہ سامنے آئی جائیں. باقی اس کے علاوہ جو کوئی تفصیل ہے وہ سیکٹری صاحب بھی بتا دیں گے، یا آپ کو کوئی سوال ہوئے تو اس کا جواب یہ بتا دیں کہ جن پرائیویٹ ٹور آپریٹر کسی کے پاس 100 کا 50 کا کوٹا، اور وہ بھی اس طرح کوارٹر بنائیں گے جی. نمبر دو، وہ جو آپ نے کہا ہے کہ کمپنسیشن ہے 10 سے بڑھا کر دی، جب کوئی حاجی اپلیکیشن کر دے گا اس کا نام نکل آتا ہے، وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ وہاں پہ جا کے اگر اس کو انجری یا وہاں جا کے پہنچنے کے بعد جو بہتر بنانے کے آپ نے کہا کہ مزید اقدامات اٹھائے جائیں تو ان کا کچھ ایک تو یہ جی کہ اس کو بریک کر دیا پیمنٹ کو، ٹھیک ہے جی، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. 2 ہی پیکیجز ہم نے اس دفعہ 10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 10,75,000 اور 11,75,000. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اس طرح سے قیمتیں بڑھی نہیں، حالانکہ ہر چیز کی بڑھ گئی قیمت سعودی میں بھی پاکستان میں بھی، لیکن ہم نے وہی رکھا ہے جو پچھلے سال تھا. ضروری بتائیے گا کہ آپ نے جیسے پالیسی کا اعلان کیا ہے، ایک تو آپ نے یہ بتایا آپشن، اس میں اور بھی کافی چیزیں ہیں وہ آپ کو پھر دے دی آپشن جائیں. آپ نے کر دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ آپ اس کو حج جو ہے وہ اس کی درخواست دے سکتے ہیں. ایک جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس ایک یقین دہانی کروائی جی تھی، اس پہ کام ہو رہا ہے جی، مجھے پتہ ہے آپ کیا سوال کرنے لگے. جی 1 لاکھ روپے فی حاجی کو واپس کرنا، جی تقریباً اس حوالے سے سر کیا اب تک پیش رفت ہے؟ 1 لاکھ کم لیے تھے اس سر. حوالے سے بتائیے. جی اس میں یہ ہے کہ ہماری کل پرسوں بھی بات ہوئی ہے سعودی حکام سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں امید ہے کہ ہمیں جب جیسے ہی ریفنڈ ملے گا تو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے حاجیوں میں. تو وہ آپ کا جو پیکیج آپ لیں گے کیا اس میں وہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ آپ وہ حاجی کے اوپر ہے جی، پتہ نہیں وہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں اس سال یا نہیں، ہر آدمی تو نہیں جاتا. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اس دفعہ پریفرنس دیں گے ان حجاج کو جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، قرآن اندازی میں ان کے چانسز زیادہ ہوں گے. صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ سال اوورسیز کے بعد اسپیشلی اور کامن لیڈر بھی بڑی ڈسکریجنگ سچویشن کی درخواستوں کے حوالے سے، اس بار جو گزشتہ تجربات ہیں ان کی روشنی میں کوئی خاص آپ نے اسٹیپس لیے ہیں کہ پچھلی بار جو صورتحال سامنے نہ آئے؟
ओवरसीज़ का जी दोबारा बताएं। वास्तव में लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। जी नहीं थी, बिल्कुल इस दफा आप बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? नहीं, वो अगर वहाँ से कर रहे होते तो वो तो कई गुना महंगा है जी। आप यूरोप और कनाडा से जो लोग आए हैं $20-20 हज़ार डॉलर दे के आए हैं। इस दफा क्या हो रहा है? इस दफ़ा हमने जी एक एवरेज बनाई है, वरना हम हमारी ख्वाहिश होगी कि वही कोटा जो है वो फिर हम नॉर्मल हुज्जाज के लिए इस्तेमाल कर लें ताकि वो ज़ाया ना हो। हमारी इसमें सऊदी हुकूमत से भी डिस्कशन हुई है और इसमें कोशिश यही होगी कि जी वो यूटिलाइज़ हो, अगर ना हो तो कम से कम, वरना ये है कि हमारा कोटा पे रिड्यूस कर सरकार देंगे। में 5,000 है और वो सर, ये इंशाल्लाह बताइएगा हो कि जाएगा। पिछली दफा भी आपने हज कोटा वापस किया क्योंकि जितनी दरखास्त नहीं, वो वही ओवरसीज़ वाला ही था। ओवरसीज वाला नहीं था, तो सर इस दफा क्या करें? हज के जो अखराजात हैं 11 लाख 70 लाख रुपए, लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं सर? उसमें एक ये तो कि- आपने नई आपने चीज ऐड की है, लेकिन सर आपको क्या इस दफा पूरी उम्मीद है कि जितना आपका कोटा है वो पाकिस्तान वो यूटिलाइज कर ओवरसीज़ वाला हमारा अपना तो हम कर लेते हैं हमेशा, जो पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ का होता है ना जी, वो उसका हमने इस दफ़ा ये प्लान बनाया कि अगर वो ना यूटिलाइज़ हुआ तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लोकल हजियों के लिए। 5,000 पिछली दफ़ा हमने सरेंडर कर दिया था, इस दफ़ा उसको 5,000 है और 5,000 लास्ट ईयर हुई। जी जी ये जो पैकेज है उसकी मार्केटिंग करने वो है भी में 5,000 ही नाकाम बस। रही है, उसकी क्या वजूहत है सर? क्या वजारत खारजा इसके ऊपर काम करने में नाकामी का सामना रहा है? नहीं वो मेरे ख्याल है, देखें होता ये है कि जी जो बाहर बैठे हुए हैं वो पीछे उनके यहाँ वालिद वालदा ही होते हैं, वो उनको एक ही दफ़ा हज करवाते हैं। अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये तो नहीं होगा कि हर साल किसी नए शख्स को हज करवा रहा होगा, और इस दफ़ा वो है भी सिर्फ 5,000। मिडिल ईस्ट में गरीब लोग हैं। मिडल ईस्ट में ज़्यादातर वही लोग हैं जो खुद 30,000 प्राइवेट। जी 30 प्राइवेट। सर वज़ारत मज़हबी अमूर को अमूमन हुकूमत के साथ डॉलर के उस इशू आता है, तो ये कोई मसला हुकूमत के साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी एड्रेस किया है? और दूसरा वहाँ से वज़ारत मज़हबी अमूर ने अमूमन अपने वज़ारत मज़हबी अमूर जो वहाँ की वज़ारत हाजिर हैं, वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक कहा लिखा है कि यहाँ से जो उम्रा पे लोग जाते हैं वहाँ पर भी काम के वक्त पाकिस्तान की बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो इस हवाले से वज़ारत मज़हबी अमूर ने क्या स्टेप उठाया? दो चीज़ें जी, एक तो डॉलर के हवाले से हमारी स्टेट बैंक से भी बात होगी है, जो वज़ीर ख़ज़ाना उनसे भी बात होगी है, तो ये प्रॉब्लम इस दफ़ा नहीं आएगी। और दूसरा जो आप बता रहे हैं जो भीख मांगने जाते हैं, उम्रा वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके भीख हज मांगते में हैं, नहीं जाते। हज पे ऐसे कोई शिकायत नहीं है जी, उम्रे पे आई हैं और उसके लिए एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया और अब उसके पीछे जा रहे हैं एक स्टेप पीछे कि जिस कंपनी के थ्रू वो लोग उम्रे पे गए हैं अब उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम रजिस्ट्रेशन मेरा ये सवाल है आपसे कि और उम्रा जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं जी। पिछले साल भी आपने कहा था कि 11 लाख से ऊपर था आज की जो आज करने की पेमेंट, आपने कहा था कि आइंदा साल जो है ना कम हो जाएगी, और इस दफ़ा जो है ना डॉलर भी नीचे आया है। इससे कम ये होगी बताइए सर, कि कोई नहीं, मैं चीज़ कम होगी। ये कभी नहीं कहा था कम हो जाएगी जी। मैंने आपको ये कहा था, पिछले साल ये कहा था कि ये उससे पिछले साल से कम है पिछले साल से कम। जी। लेकिन डॉलर आप नीचे आया, ये बताइएगा कि ये 8.5 तक आप लेके आएंगे? नंबर 2 डॉलर तकरीबन उसी रेंज में है नहीं जी। है। आप देखिए इसमें क्या क्या किच आता है। अब मैं छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। थोड़ा सा सवाल पूरा कर ले जी 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 बताएं। कि वहाँ पे यहाँ से जो लोग आपके अदारे के हैं ये अपने लोगों को भिजवाते हैं आज ड्यूटी के लिए, क्या कि इस वक्त दूसरे अदारों से भी आप लेंगे? जो NTS के थ्रू जाते हैं सरकारी हर मुलाजिम, इदारा is open। उसमें हर इदारा ओपन होता है। जितने भी सरकारी इदारे हैं सारे हर तरफ से लोग अप्लाई करते हैं। जो हमारे साथ पिछली दफ़ा पुलिस के भी SP भी रैंक के भी लोग थे, और जो हर साल दोबारा जाते हैं वही? नहीं जी नहीं, दोबारा इस तरह नहीं है कि हमारे जी जी तकरीबन जी बता रहे हैं 55,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से कितने सेलेक्ट हुए थे जी? 550। यानी 55। बात सिर्फ ये है कि आपने कहा है कि दोबारा हाजी एक दफा जो गया है ना दोबारा नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं जा सकता। चलिए, पर जो आपकी तरफ आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से वो हर साल उन्हीं का नाम आ जाता है। नहीं जी, नहीं। वहाँ पे वो आप पिछले साल से ख़त्म हो गया था। वो पिछले साल से ऐसा नहीं है जी, पिछले साल से ऐसा नहीं है कि वही रिपीट हो ही जाएंगे, लेकिन इसमें रिपीटर होता ज़रूर है। उसका एक जो बेनिफिट है ना वो ये है कि वो हुज्जाज के साथ जाएगा तो उसको ऑलरेडी पता होता है कहाँ जाना है, कहाँ से उनको पिक करना है और किस जगह लेके जाना है, माहौल क्या होगा। अगर वो आदमी खुद पहली दफ़ा जा रहा होगा तो वो उसके लिए भी हमें फिर गाइड की ज़रूरत होगी। टीवी से मेरा ताल्लुक है, ये बताइएगा कि पिछले साल जो शिकायत आई थी
आपने कहा था, वज़ारत मज़हबी उमूर ने कहा था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। 95%। तो थोड़ा सा वो डिटेल हमें बता दें किन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। जी बिल्कुल, उसमें सेक्रेटरी साहब आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी बात यह है कि तकरीबन जितनी भी थी कंप्लेंट्स वो सारी की सारी तकरीबन 98% एड्रेस हुई हैं। थोड़ा सा अगर आप बता दें एग्जैक्ट रेशोज़। जी जो जी मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। जो हमारी प्राइवेट कंप्लेंट्स जो हमारे पास HGOs के हवाले से आई वो तकरीबन 850 टोटल कंप्लेंट 764 कंप्लेंट्स और उनमें से 753 जो हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। और इसमें से कंप्लेंट्स जो CDC एक हमने एक फोरम बनाया था कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी 35 उसके अंदर अभी इस वक्त ज़ेरे बहस हैं और कॉम्पनसेशन जो थी 477 हुजाज को तकरीबन 31,611,000 यानी तकरीबन समझ लें 3.5 करोड़ के करीब हमें हम पैसे वापस भी कर चुके हैं। और इसके अंदर तमाम किस्म की कंप्लेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अकोमोडेशन रिलेटेड, खाने के से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट किसी को हमने कोई तरजीह नहीं दी, बड़ी फ़ोन आए सिफारिशें आई लेकिन किसी का हमने नहीं इसमें सुना। इसमें जो कंपनियां जिस चीज़ की भी मुर्तकब है उसके लिए उनको यानी उनके ख़िलाफ़ जो इंज़बाती कार्रवाई है वो इस वक्त अमल में लेके आई गई। आप ये हमारे इसके ऊपर वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और हमारी जो CDC कमेटी और अपीलेट कमेटी है यहाँ पे बाकायदा तौर पे इस वक्त फ़ाल है। और अगले हज के लिए भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो जो हमारे हमने लेसन्स लर्न किए हैं उसके मुताबिक हम नई यानी ट्रेनिंग रिजीम नया ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह हमारे इस दफ़ा वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है उसके अंदर नई चीज़ें डालें। मिसाल के तौर पे हम बताएं जो 100 हाजी के साथ एक बंदा यानी सऊदी तालीमात के मुताबिक हर 100 हाजी यानी 100 के पीछे एक सर्विस स्टाफ मेंबर तैनात किया जाएगा। पहले ये होता था कि मशायर के दिनों में मशायर के अंदर यानी मिना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के अंदर ये एक्सेस होती थी जितने भी ये हमारे ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे डायरेक्टरेट्स हैं तमाम ममालिक के कि वो लोग अपना सर्विस स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं यानी मुआवनीन की सूरत में या ये खुदाम की सूरत में या मेडिकल मिशन के हवाले से। लेकिन नई तालीमात के मुताबिक अब वो एक्सेस जो है वो डिनाई कर दी गई। सो लिहाजा अब हमने क्या करना है कि हमने उन्हीं मुआवनीन को उनके साथ यहीं से अटैच करना है और हमारी नई स्कीम का नाम है घर से घर तक। वो यहाँ से उनके साथ यहीं से अटैच हो जाएंगे कंटिजेंट में, यहीं डायरेक्टरेट में जो आज कैंप में वहाँ ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ है। वही जहाज बंदों के साथ ही मूव करेंगे, वही बिल्डिंग्स के अंदर रहेंगे, वही मिना में जाएंगे और वही उनको वहाँ पे सारा ये इंतजाम। शॉर्ट स्टे हज का भी आपने कुछ है इस बार है इस बार भी है। डिटेल बता जी उस बार भी है, वही 20 से तकरीबन 25 दिन के दौरान होगा। सर उसके अखराजात कितने 1 लाख ज़्यादा एयरलाइन की वजह से तकरीबन 1 लाख ज़्यादा यानी 1075 1075 40 दिन वाला और 1175 10 दिन और 20 दिन होगा। कोट है कि जो भी अप्लाई करेगा वो नहीं उसका भी एक लिमिट है। अली शेर साहब एक लिमिट है क्योंकि वहाँ पे बुकिंग भी उस हिसाब से करनी है क्योंकि कम दिनों का महंगा खर्चा ज़्यादा होता है। बाकी 35 डे का 40 जी जी एक तो एप्रिसिएशन इस बात के ऊपर कि हाजियों के लिए आप लोगों ने ये अच्छी स्कीम की वो किस्तों में पैसे दे सकेंगे क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से बेचारे रह जाते थे कि उनके पास ना कट्टी रकम होती जी, थी, मुश्किल वो है। जमा ये तो एप्रिसिएशन है। लेकिन दूसरी जो भी आपसे पहले वज़ारत मज़हबी में वज़ीर मज़हबी आए ये सारे दोस्त लोग आए मैं उनको ये कहता रहा कि जिस तरह आप ये प्री हज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप पोस्ट हज प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे कि जिसके नतीजे में आप क्लैरिटी लाने के लिए ये जितनी शिकायत हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर सामने आए और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और आम हाजी को पता चले कि आपने उसकी दरखास्त के साथ क्या एड्रेस किया है। मुमकिन है आपने ठीक किया, उनको इस पे शक नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि क्लैरिटी आएगी उस चीज पे कि आप बिल्कुल एक एहतसाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि ये सारी चीजें हमारे मीडिया के सामने सिर्फ इस नुक्ते एक नुक्ते के ऊपर। चले इस दफ़ा ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमने विजिट किया है सऊदी अरब का और उन्होंने हमें मुख्तलिफ मस्जिद का विजिट करवाया। वहाँ पे एक जो तशवीशनाक चीज़ हमें नज़र आई है कि जो माफिया है वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है, उससे ड्रग्स वगैरह जैसे स्मगल कर रहे हैं। आप पिछले दिनों आपके पास भी शायद इत्तला हुई कि एयरपोर्ट पे तस्बीह अब वो मंशियात की बनी हुई तस्बीह भी पकड़ी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत का एक असर
चंद जो काली बेड़े हैं उसकी वजह से पाया जा रहा है। तो इस पे क्या आप इकदाम कर रहे हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या उनकी क्लियरनेस के बगैर वहाँ से इस तरह की मंशियात यहाँ से जा सकती हैं? और कुछ ऐसे माफिया भी है जो पैदल तो मुख्तलिफ जो भीख मांगने के लिए 3-3 माह का प्रोसेस करते हैं, 3 माह के लिए मुख्तलिफ ख़वातीन को मुख्तलिफ जो शहर हैं स्पेशली उन्होंने हमें वो शहर भी वहाँ पे दिखाए कि ये ज़्यादा इलाके हैं जहाँ से लोग आते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दाम हो रहे हैं? इसमें जो जाते हैं जी भीख मांगने के लिए, उनके लिए तो बहुत सख्त इक़दाम आपको जैसा मैंने पहले बताया है यकीनन हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आप बता रहे हैं मंशियात के हवाले से, उसमें आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें यहाँ पे अपने एंड पे सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मिली भगत के बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन कोई रन कर रहा हो। और इसी तरह ही जो भीख मांगने भी जाते हैं उनकी भी पुष्पनाई लोग यहीं पे बैठ के माफियाज करते हैं, तो उनके ऊपर शदीद क्रैकडाउन किया जा रहा है और मज़ीद करना चाहिए। मैं तो इसके हक़ में हूँ। क्रैकडाउन के नतीजे में कोई रिजल्ट्स भी आए कहीं पे, कोई जी लोग पकड़े गए? बहुत ज़्यादा जी। वो तो ये अभी ऑब्वियसली वज़ारत दाखिला आपसे ये ज़रूर शेयर करेगी, लेकिन जो मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी शदीद क्रैकडाउन किया गया है। और इसकी जो जिस तरह पहले बड़ा फ्रीली लोग जा रहे थे, अब इसके बहुत लोग इस पे ध्यान भी दे रहे हैं। और इसके लिए एक और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि देखें भीख मांगना पाकिस्तान में क्राइम नहीं है, यानी इसको जुर्म नहीं समझा जाता। इस पे अगर हल्की सी कानून साजी हो जाए कि जी अगर कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है, तो जब वो वापस आएगा तो ये नहीं होगा कि वो एयरपोर्ट से निकल के अपने घर चला जाएगा। उसकी अगर हम कोई यहाँ पे कानून में कुछ ऐसी चीज़ ले आएँ कि उसकी एक सज़ा का तयन कर लें, तो आप यकीन करें 90% ये काम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। है मेरे ख्याल में नहीं है, उस पर है कोई सज़ा जी? कानून है जी, इस पर कोई सज़ा है या नहीं है? मतलब बड़ा रिलैक्स कानून होगा, आई एम श्योर। सर वो बेसिकली बैगरी एक्ट के तहत ये वैगरेंट पकड़ के तो जमा कराया जाता है कि इसका स्क्वाड बनाया हुआ, लेकिन उसके ऊपर जुर्माना करके छोड़ दिया जी। वही ना जी, अगर उस पर कोई सज़ा तजवीज़ कर दी जाए कि 6 महीने आप इम्प्रिजनमेंट होगी, तो आप यकीन करें जी, तो यकीन करें लोग जाने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे। जी सर। मेरा एक सवाल है साहब, पिछले साल पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये मिनिस्ट्री ने जो इंतजाम किए थे उसमें जो अपना आज मेडिकल मिशन था, इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ वगैरह मिली, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। दूसरा ये है कि वहाँ पर मक्का और मदीना में तो जो अच्छा था बिहेवियर और होटलिंग वगैरह, खाना वगैरह ठीक था, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जो यहाँ से लोग आपने हायर करके भेजे थे मामले, उनको तो ज़्यादा पता नहीं था और वो वहाँ पर अरबी भी बोलना नहीं जानते थे। तो वहाँ से फिर कोऑर्डिनेशन जो थी ना, जो हजाए यहाँ से गए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी वो SH उसमें था ना रुकावट। और उसमें यह था कि वहाँ से जो लोग शायद लोकल कोई नौजवान आप लोगों ने भर्ती किए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया, उन्होंने लोगों के साथ साथ ना वो उनको बड़ा अच्छे तरीके से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई वो लोगों को उन 5 दिनों में पेश आई जो कि मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के 4 से 5 जी। वहाँ पर जो थे मामलीन जो जहाँ से गए थे वो वहाँ पे थे ही नहीं, मौजूद नहीं। जी जी, वो इसीलिए जी बिल्कुल हमने ये सर एक सेकंड मुझे। और दूसरा सर ये है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर अरफात में लोगों को खाने के बड़े मसाइल थे। तो कोई ऐसा वहाँ की सारी बात है, वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट के साथ आपका रब्ता होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो इंतजाम करते हैं। तो सर कोई ऐसा कुछ थोड़ा सा कोई कीजिए ताकि इस साल एक तो ये कि मामले लोगों के लिए वहाँ मौजूद होंगे जी। इस दफ़ा इसीलिए ना जी हमने वो जो अभी शेख साहब में आपको मेंशन कर रहे थे कि घर से घर तक ये पहले नहीं था प्रोग्राम, ये होगा कि वो जो मुआविन होगा वो आपके साथ ही रहेगा। अगर आप लाहौर से कराची कहीं से भी जाते हैं, पेशावर से, तो आपके साथ ही फ्लाई करेगा, आपके साथ ही रहेगा। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में भी आपके साथ ही मौजूद होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि अगर आप एज ए मुआविनीन जा रहे हैं तो आप हज नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा तो हमने उनको हज वाले उसके अंदर ही रखा है जी। जो वहाँ से लोकल वो जो नौजवान थे थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम जी। इस दफ़ा तो हमने ये जो इस दफ़ा हमने ना जी ये जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें अरबिक लैंग्वेज भी शामिल की है कि बेसिक लैंग्वेज आती हो। 3 महीने के उनको बाकायदा कोर्स भी सिखाएंगे कि जब वहाँ जाए हल्की फुल्की कम्युनिकेट कर सकें, और प्रेफरेंस भी देंगे अगर किसी को ऑलरेडी अरबिक लैंग्वेज आती है
تو اس کو پریفرنس دیں گے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں جو وہاں سے ہائر کی ہیں انہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے, ان کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. یہ جو آپ نے پورا اندازی کے بعد جنہوں نے پیسے واپس لینے ہیں اس کو 50,000 روپے آپ نے فیس رکھی ہے. جن کے نام نکلیں گے ان کے لیے فیس ہے کہ جن کے نئی نام نکلیں گے ان سے بھی 50,000 کاٹیں گے؟ نہیں, ان سے تو نہیں کٹے گا. 50,000 روپے آپ کی پریس ریلیز ہے. 50 اگر کوئی پیسے واپس لیتا ہے تو 50,000 نہیں, وہ ایک خاص وقت کے بعد اگر مطلب ٹائم گزر گیا کیونکہ ہم نے اس کی وہاں بکنگ کرا لی ہوگی نا جی, تو اس کا وہ نقصان ہوگا اس وجہ سے. یہ نہیں کہ وہ ٹائم یعنی 10 فروری تک یہ جس طرح آپ ٹکٹس کی بکنگ کرتے ہیں نا پی آئی اے کی کہ اگلے 24 گھنٹے کے سے پہلے اتنے تو آپ کو پورا مل جاتا ہے. وہ باقاعدہ ٹائم ڈیڈ لائن بتائی جائے گی کہ جی اس وقت تک آپ پورے پیسے جمع کرا دیں ورنہ اتنی کٹوتی ہو جائے گی. وجہ یہ کہ آگے پیسے بھیج دیے گئے ہوں گے. نام نکل آیا اور پھر بھی 2 مہینے ہوتے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آج جا رہا ہے اس کی وہاں اسپیس کی بکنگ کرتے ہیں وہ پیسے ہم دے چکے. یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی یہ 18 نومبر سے تقریباً 3 دسمبر تک. اور 18 جی درخواستیں 18 نومبر سے 3 دسمبر کے درمیان جو ہے وہ جمع ہوں گی جی. اور 6 دسمبر کو جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, نام سامنے آ جائے گی. 18 سے 3 دسمبر.